हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਚੈप्टर ਨੰਬਰ 12 ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਮੀਨਸ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਐਂਡ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 11th ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਐਂਡ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਾफ़ी ਸਟੂਡੈਂट्स कह रहे हैं कि मैम साडा टेस्ट भी लिया करो, बट टेस्ट इज़ नॉट पॉसीबल कि इन्ने ज़्यादा स्टूडेंट्स का मैं टेस्ट लै पावां। बट बच्चे तुहानूं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देंगे। तुसीं आफ्टर लैक्चर जिद्दां ही तुहाडा लैक्चर कंप्लीट होएगा तुसीं अपने क्वेश्चनस अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर कर लेना, लर्न कर लेना। लास्ट दे विच बच्चे सैल्फ टेस्ट होएगा, तुसीं अपना टेस्ट खुद लै सकदे आ। मतलब क्वेश्चन पेपर तुहानूं मिल जाएगा, तुसीं अपना टेस्ट बच्चे खुद लैके चैक कर सकते हैं। अगर ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਂਡ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। So पहली ही definition है, define the term thermodynamics, which is the important question. Thermodynamics is a study of heat, temperature and conversion of mechanical work into heat and vice versa. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੀਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਬੱਚੇ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਲਟਾ, ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Thermodynamics deals with bulk system and it does not concentrated with the molecular constitutions of the system. So बच्चे bulk system मतलब कि यह डूंघाई तक जड़ा है वो डील करता है भी किस तरीके ना जड़ी आ कोई भी सिस्टम आ हीट अप हो रहा, किस तरीके ना उसका टैंपरेचर वॉल्यूम एक्सैक्ट्रा जड़ा चेंज हो रहा है एक्सैक्ट्रा। सो बच्चे अगर 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है तो तुसीं वाइस वर्सा तक भी लिख के छड्ड सकदे आ। नैक्सट आ जाओ, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मोडायनमिक वेरीएबल्स। बच्चे वेरीएबल्स किहड़े हुंदे आ, किहड़े जिद्दां असीं किसी चीज़ नूं मान लो असीं चाह बना रहे हां ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਰਮਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾय ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲੀਅਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਡੂ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲੀਅਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਡਿਫਾਈਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ? ਸਟੇਟ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਬੱਚੇ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन ਉਹਦਾ मैथमैटिकल पोर्शन बच्चे समटाइम पूछ लिया जाता है कि मैथमैटिकल पोर्शन लिखो, समटाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैथमैटिकल पोर्शन। जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो बच्चे जिदा साइक्लिक है, रिवर्सिबल प्रोसैस, इरिवर्सिबल प्रोसैस, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, बच्चे सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो तुहाडे कोल 17 क्वेश्चनस है अकॉर्डिंग टू दिनेश बुक। दिनेश की बुक के बच्चे 17 क्वेश्चन इदा दे आ जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन तुहानूं पूछे जा सकते हैं। सो नैक्सट आपां करदे हां दिनेश की बुक तो बच्चे 2 मार्क्स के क्वेश्चनस। हाउ डज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजिज ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसैस। अगर तुसी एडियाबैटिक प्रोसैस लै रहे हैं तो कहते इंटरनल एनर्जी चेंज किस तरीके नाल होएगी। इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टैंपरेचर। सानू पता बच्चे इंटरनल एनर्जी जिहड़ा टैंपरेचर ते डिपेंड करता है, टैंपरेचर घट आ या ज़्यादा। ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन द टैंपरेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज एंड हैंस इन इंटरनल एनर्जी
ऑफ द सिस्टम ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर कहते टैंपरेचर घटा दिता जाएगा तो इंटरनल एनर्जी भी की हो जाएगी, घट हो जाएगी। ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रैशन, कंप्रैशन का मतलब होंगे जिथे जाके कोई चीज़ कंप्रैस कर जाए, सुंगड़ जाए। टैंपरेचर ऑफ द सिस्टम इनक्रीजेज एंड हैंस इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इनक्रीज। अगर टैंपरेचर इनक्रीज कर रहा है तो तुहाडा इंटरनल एनर्जी भी की कर जाएगी, इनक्रीज कर जाएगी। सो बच्चे रीजनिंग के क्वेश्चन आ इधर के क्वेश्चन भी कह लो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नैक्सट है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। सो बच्चे एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एफिशिएंसी वर्गे क्वेश्चन बच्चे तुसी अच्छे तरीके ना करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। ऑन व्हाट फैक्टर्स द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट हीट इंजन डिपेंड। केड़े-केड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करती है। नंबर 1 इज अ टैंपरेचर, नंबर 2 इज अ नीटा। मतलब नीटा केड़ी चीज़ से डिपेंड करती है, दो टैंपरेचर है, एक T2 और एक T1। सो कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टैंपरेचर ऑफ द सोर्स एंड अ सिंक। एक बच्चे सोर्स आ और एक तुहाडे को की है सिंक। T1 की है सोर्स ते T2 की है तुहाडा सिंक। सो बच्चे एक क्वेश्चन जस्ट रीड आउट करने आ तुसी। लाइक व्हाट इज़ द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसैस। बच्चे इहदा जो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। क्लीयर हो गया जी। सो बच्चे बाकी क्वेश्चंस भी एक बारी तुसी रीड आउट कर लेने हैं। किसी तरह भी कोई भी क्वेश्चन जिहड़ा है तुहानूं एग्जाम दे विच आ सकदा है। सो हुण आ बच्चे आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं एक्यूरेट दी बुक दे विचों। बच्चे एक्यूरेट दी बुक जो है वो पर्टिकुलर पंजाब बोर्ड दी बुक है। मतलब अगर तुसी पंजाब बोर्ड दे स्टूडेंट आ, चाहे बच्चे मॉडर्न पढ़ लो, दिनेश पढ़ लो, उन्हां विच कुछ क्वेश्चनस पंजाब बोर्ड दे है, कुछ क्वेश्चन CBSE दे आ। बट जो बच्चे एक्यूरेट दी बुक है इहदे विच सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड दे क्वेश्चनस मैंशन है। सो रिपीटिड क्वेश्चनस ही होणगे, सो घबराउण दी जरूरत नहीं है। डिफाइन थर्मोडायनमिक्स, थर्मोडायनमिक्स की है तो ये बच्चे किहड़ी-किहड़ियां टर्म्स आंदियां। ओपन सिस्टम की है, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द थर्मोडायनमिक वेरीएबल्स। थर्मोडायनमिक वेरीएबल्स किहड़े सी बच्चे, हुणे आपां दिनेश दी बुक दे विचों रीड आउट करके हटे आ। वेरीएबल्स किहड़े सी, टैंपरेचर, प्रैशर, वॉल्यूम एक्सैक्ट्रा। अगर बच्चे तुसीं एग्जाम्पल दे के आने तो डेफिनेटली तुहाडे बच्चे टीचर के उपर गुड इंप्रैशन जाता है। सो डेफिनेशन के नाल नाल अगर तुसीं एग्जाम्पल दे सकते हैं तो वैल एंड गुड है। वट डू यू मीन बाय द थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम। हुण थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम की आ। अ थर्मोडायनमिक सिस्टम इज सेट टू बी इन thermal equilibrium if its variable like pressure, volume, temperature, number of particles do not change with time. So same definition आ जो बच्चे असीं पहला पढ़ के हटे हैं। When two bodies are said to be in thermal equilibrium, बच्चे 0th law रिपीट हो रहा क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वासी स्टेट प्रोसैस, बच्चे तुहाडे सैंपल पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आया होया। इनफाइनेटिसमली स्लोली, इदां दा कोई प्रोसैस जिहदे विच इदां दा कोई प्रोसैस जिहदे विच बच्चे कोई सिस्टम आ, तुहाडा प्रोसैस आ बहुत ज़्यादा हौली हौली चल रहा, उहनूं असीं क्वासीस्टैटिक प्रोसैस जिहड़ा आ बोल दिंदे आ। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसैस, एडियाबैटिक प्रोसैस, आइसोक्लोरिक प्रोसैस। दीज आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बच्चे नेक्स्ट डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। आइसोबारिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, पीवी डायग्राम बच्चे लेस इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर। सो बहुत सिंपल लैंग्वेज के विच बच्चे लिखी हुई है। बाई चांस तुहानूं कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं लगता तो बच्चे कमेंट सैक्शन के अंदर पूछ लेना। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नॉट बी 100%। कहते जो एफिशिएंसी आ किसी भी हीट इंजन की 100% हो ही नहीं सकती। बच्चे अगर कोई भी इंजन चल रहा है तो कोई ना कोई हीट जी लॉस होएगी। सो इसका रीजन की आ, दिस कैन नॉट हैपन, कहते हो ही नहीं सकता बिकॉज Q0 इक्वल्स टू 0। अगर Q0 0 होएगा, ठीक है, Q2 बच्चे 0 किया, जी हीट रिजेक्ट हो रही है सिंक द्वारा, देन द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सबसटेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो हौली हौली इंक्रीज होंदा जाएगा। एक स्टेज इदा दी आ जाएगी कि टैंपरेचर ऑफ द वर्किंग सबसटेंस बिकम्स इक्वल टू द टैंपरेचर ऑफ द सोर्स, कि वर्किंग सबसटेंस का जो टैंपरेचर आ बच्चे टैंपरेचर ऑफ सोर्स दे इक्वल आ जाएगा। इदा दी सिचुएशन च की होएगा, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स टू सिंक, या वर्किंग सबसटेंस दे विच ओह कन्वर्ट नहीं होएगा। हैंस
ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ 100% ਬੱਚੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਡਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਰਸਟ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਚੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਐਸ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਫਾਈਨ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਾਰਨੋਟ ਥਿਓਰਮ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਔਰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਉਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।